Welcome everyone, and I'm so excited for yet another Fashionpreneur Fame Club interview. And today I have with me one another warrior, and her name is Divya Dhaduk, and she is from Surat, running her brand called Diya Jewels. And Divya has done about 11 lakhs in revenues in the last couple of months, and she runs an amazing fusion and Kundan jewelry brand. So, welcome, Divya, and I am super excited to know more about your journey and tell me more. How do you stay silent in the diamond group and still make money? Like I was telling before the interview to Divya that I don't see you ever in the sessions and still you are here making money silently. So over to you, Divya. Tell me, how did you think of starting your brand Diya Jewels? Hello everyone. I'm Divya Dhadu. Uh, I'm not silent. I'm always there, ma'am. Whenever Oh, your session is there, I'm always there. But yes, I'm not. मतलब मैं मेरा कैमरा जस्ट ऑन नहीं करती तो मैं विजिबल नहीं हूँ वहाँ पे. hmm. अदरवाइज मैं आपकी कोई भी सेशन मतलब मिस नहीं करती हूँ. Hmm. मेरा नीस है फ्यूजन एंड कुंदन ज्वेलरी. I just finalized after boot camp. Before that, I had an issue where to go. I was doing like German silver, I was doing Kundan jewelry, I was doing pearl jewelry. I was in a like different segment. That time I was stuck with one niche. But then suddenly you declared about boot camp and really ma'am it was मतलब बहुत बहुत मुझे हेल्पफुल हुआ वो बूट कैम्प. उससे मुझे एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन मिल गया कि वेयर टू गो. Super. मैं मेरा जर्नी स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ. I had finished my MBA in 2013 from Bells University, London, and then after I came back here to start my own business. But during there, मेरा मतलब शादी हुआ 2014. In between, I got pregnant, and then 2000 till 2016, Poonch came my son. He's a 7-year old. Wow. Then after I just spending my time with my coach. Then when he became like a 1 year, that time I got one opportunity. Like I can handle one company, small kind of company. There I can join like a HR manager. Mm-hmm. I got an opportunity, but I got confused how I can join. Coach was just 1 year. I had so much to do with the coach, even with the family. But I said with my husband, and he supported me very well. My family as well, my mother-in-law, my mother. They said like they will take care for my coach, and I can join that job. So मैंने like 2016 में job join किया था as a HR manager. Mm-hmm. There उन्होंने मोस्टली मुझे ज्वाइन उसी लिए किया था कि उनको एक्सपांड करना था, उसके लिए प्रोजेक्ट्स एंड ऑल बनाने थे एंड उनको टीम बिल्डिंग करना था. Mm. तो इन 6 months वी डन दैट ऑल प्रोजेक्ट्स एंड वी रेज अ फंड. दैट टाइम आई फेल्ट I am not came here to do job in any under person. So I also feel that I can become one partner that time. सो मैं भी उसी फॉर्म में एक पार्टनर के लिए मतलब ज्वाइन हो गई. मैंने थोड़े फंड इन्वेस्ट किए जो मेरे बिजनेस के लिए ही मैंने मतलब संभाल के रखे हुए थे काफी टाइम से. एंड देन my partner switched to another business and he handle every department to me. मोस्टली 5 ईयर मैंने वहां पे काम किया, सारे Mm. डिपार्टमेंट में हैंडल कर रही थी. बट यू नो मैम, इन इंडिया आई फेल दैट कि इन इंडिया if women are doing anything, nobody will appreciate, nobody will give salary even like men get. Mm. तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा था मुझे. इफ आई टेक एनी डिसीजन, ऑलवेज एवरीबडी क्वेश्चन टू मी व्हाई यू डिड दैट. कुछ भी अच्छा हो रहा है तो क्रेडिट वो लेते हैं.
नो प्रॉब्लम विद दैट, बट अगर कुछ भी उल्टा पड़ रहा है तो हाँ, ब्लेम तो आपने ये डिसीजन दिया था। तो इन दैट केस आई फील दैट ये मतलब यहाँ पे मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है। हम्म। वॉट एवर रीजन आई वॉज देयर पार्टनर, बट वो ऑनर जैसा मुझे फीलिंग ही नहीं आ रहा था इन 5 ईयर इवन। वाओ। वहां हम्म। पे मैं हॉट सीट पे बैठी थी कि चलो ये मेरा है पूरा एम्पायर, बट इवन दो इनर इनर से मुझे कुछ वो फीलिंग ही नहीं आ रहा था। तो देन सडनली मतलब लास्ट इन 2022 इन मार्च आई डिसाइडेड आई हैव टू लेफ्ट दिस जॉब, क्योंकि उसे मैं खुद का बिजनेस मान ही नहीं रही थी, उसको वो मुझे जॉब ही लग रहा था इन 5 ईयर इवन। हम्म। तो मैंने वो छोड़ा एंड जब मैंने छोड़ा मेरे पास वो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इतना अच्छा जॉब मतलब अच्छा सैलरी वो सब छोड़ के अब क्या करने वाली हूँ। मैंने पहले जस्ट सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ फिर देख लूंगी। मैं एक जगह पे स्टक हो गई थी। देन I was just scrolling in April or May, हाँ April. I was just scrolling on website or everywhere what I can do. That time your webinar का एक मैसेज मुझे सामने ट्रिगर हुआ। I was just praying to God that time कि मुझे कुछ एटलीस्ट रास्ता कुछ पाथ दिखा दो, and that time that message was triggered there fashionpreneur webinar something there. So I click on that. That was a free webinar. I हम्म। know, and I have checked all that 1 to 2 hour your webinar, and without any second thought, I'll just join to that silver membership. It was a minimum for me. भी हो जाएगा अगर कुछ मुझे रास्ता नहीं भी मिल रहा है तो। So I join your silver membership, and I still know that you know that time I have finished your 9 bundles in just 4 days. Wow. Okay. Whenever I was cooking or I was doing any house chore, I was just watching that videos, and I have finished all that 9 bundles in just 4 days. You can check even that there is 100% done 9 bundles. And Okay. suddenly I just मतलब एक ट्रिगर आया, एक कुछ समझ आया कि हाँ ये भगवान ने मुझे कुछ बोला हुआ है कि मुझे कहाँ पे जाना है। हम्म। I believe in a Krishna Lord a lot, हम्म। and that time I just felt that हाँ यही कुछ हो सकता है कि मैं मेरा मुझे रास्ते में जाना है, कुछ मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो आई थॉट कि मैं कुछ इन्वेस्ट करती हूँ थोड़ा बहुत अमाउंट, एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ। इफ आई विल गेट सक्सेस लिटिल बिट ऑल्सो देन आई कैन गो फर्दर। इफ आई विल गेट फेल कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मैंने सोचा मैं मेरा मतलब ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने बहुत मिनिमम से स्टार्ट किया, लाइक वो 400 300 500 वाली ज्वेलरी मैंने बाय की। मुझे खुद भी पसंद नहीं आ रही थी वो, बट इवन तो मैंने बाय की कि मैं इतना ही मतलब बजट लेके चलूंगी, अगर मैं फेल हुई तो बहुत ज्यादा मैं नहीं पड़ू। हम्म। तो आई जस्ट कॉन्टेक्ट टू सम वेंडर्स एंड आई वेंट टू द दिल्ली, Okay. scroll out, and I found some that Delhi Sadar Market somewhere. तो So I सूरत went से to दिल्ली there. गए आप हाँ मैं दिल्ली गई वेंडर से मिलने? वेंडर से मिलने, क्योंकि वाओ। मुझे ज्वेलरी का कुछ भी नॉलेज नहीं था। हम्म। And मैं ऑनलाइन मतलब कुछ भी मंगवा के बेचना नहीं चाहती थी। मुझे वैसा है कि मुझे मेरी ज्वेलरी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इफ हम्म। आई एम कॉन्फिडेंट देन आई कैन सेल। सुपर। तो उसीलिए मैं वहां पे गई 2 डेज के लिए। फिर मैंने वहां पे थोड़ा रिसर्च किया, फाइंड आउट किया, वेंडर्स मतलब काफी चेक किए। मुझे 1-2 पर्सन से कुछ बेटर रिस्पॉन्स मिला, फिर मैंने उनसे ही वहां पे पर्सनली बाय करके मैं लेके आई। अराउंड लाइक 70,000 का मैंने बाय किया था तब। 70 70। 70,000 70K का। हाँ। हम्म। एंड देन मैं बाय करके तो आ गई, बट देन ऑल्सो आई वॉज ब्लैंक, अब मैं कहाँ पे बेचू इसको। आई मेड एन लाइक इंस्टा अकाउंट ऐसे दिया ज्वेल्स। मेरा नाम दिव्या है तो मुझे नाम का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई जस्ट स्टार्टेड लाइक अ दिया ज्वेल्स कि ये दिया ज्वेल्स है, वो अभी ज्वेलरी सेल करने वाले हैं। आई जस्ट क्लिक सम पिक्चर्स, बेसिक पिक्चर्स, एंड मैंने स्टार्ट कर दी वहां पे रखना। तो हम्म। मुझे इतना मतलब 1 to 2 month आई वेटेड कि कोई मुझे ऑर्डर करे।
कुछ समझ में आए, बट 2 मंथ तक तो कुछ वहां पे कुछ हो नहीं रहा था, कुछ प्राइस तक एटलीस्ट कोई पूछ नहीं रहा था मुझे। हम्म। सो आई थॉट कि अगर इफ कस्टमर आर नॉट कमिंग टू मी, आई कैन गो टू देयर। हम्म। मैं एग्जीबिशंस में जा सकती हूँ, मैं कस्टमर के पास खुद जा सकती हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप खुद लाइव चेक करो जो वर्थित है या नहीं। देन आई बुक सम एग्जीबिशंस, लाइक जो लो बजट वाले थोड़े थे, इस टाइप का कुछ वहां पे जा सकता है। मैंने मार्केट का थोड़ा सर्वे किया कि कौन से एरिया में ये टाइप का कोई ले सकता है। हम्म। देन आई बुक सम एग्जीबिशन, आई गो टू देयर। धीरे धीरे वहां पे रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया मुझे, एंड थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। That time I was selling like a 500 1000 jewelry. Now I'm selling 5000 jewelry as well. So वाओ, in a सुपर। 1 year I have that confidence कि हाँ, मुझे प्रोडक्ट मेरा जो होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे मार्केट ढूंढ के जाना है, तो मेरा वो जाएगा प्रोडक्ट। That हम्म। time I was selling to like a local market. Now I'm selling to like a middle class या middle upper middle class area. तो वहां पे मेरा काफी अच्छा सेलिंग हो रहा है, एग्जीबिशंस में भी और अभी ऑनलाइन भी काफी अच्छा चल रहा है। सुपर अमेजिंग, आई लव दिस दिव्या, वेरिन यू आर सेइंग कि मैं सूरत से दिल्ली गई बिकॉज मुझे वेंडर्स से मिलना था। यस। एंड इट वाज नॉट अ क्रिबिंग कि मुझे वेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, या लाइक यू आर रियली एन एक्शन टेकर विच आई कैन टोटली सी के मैं चाहती हूँ कस्टमर के पास, या मैं मिलती हूँ जाके वेंडर्स को। सो वेरी आउट गोइंग दैट वेज, अमेजिंग। सो देन व्हाट हैपेंड, लाइक यू स्टार्टेड गोइंग इन द एग्जीबिशंस, उसके बाद आपने कब सोचा कि मैं ऑनलाइन भी, अब वेबसाइट बनाई उसके बाद, हाउ वाज योर ऑनलाइन जर्नी शेपिंग अप देन? वेबसाइट मैम अभी मेरा बन रहा है, मैंने पूरा बना नहीं दिया है बिकॉज ऑफ कि मेरा अभी दूसरा बिजनेस भी, एज आई सेड कि मैंने वहां पे क्विट किया, वहां से मैंने कंटिन्यू, वो आपको जर्नी नहीं बताया मेरा कि दूसरा भी मैंने क्या किया था। मुझे जस्ट वहां पे मैंने डिसकंटिन्यू किया मेरा जो वर्क, वेडिंग वीडियो एडिटिंग का। वो हम्म। जो मेरा फॉर्म था 5 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस, वो वेडिंग वीडियो एडिटिंग में मैं काम कर रही थी हम्म। एज अ मैनेजर। तो वो क्विट करके फिर मुझे मेरे जस्ट इन लॉज, मेरे फ्रेंड्स, मेरी मम्मा, वो सब मुझे समझा रहे थे कि ये तेरा मतलब 5 ईयर का एक्सपीरियंस है मेहनत वाला, तूने, उनको पता है मैं कितने डेडिकेशन से वहां पे काम कर रही थी, बहुत जी जान लगा कि मैं डे नाइट कुछ नहीं देखती थी, मेरा फैमिली तक मुझे याद नहीं आता था जब मैं बिजनेस में वहां पे होती थी। मैं सब भूल जाती कि हाँ मेरा आजू बाजू भी क्या है, मुझे जस्ट वहां पे पसंद आता था मैं वहीं पे रहूं, काम करूं, बिजनेस आगे बढ़े, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, बस वही में मेरी दुनिया थी। तो दे नोज दैट, माय मॉम सेड, माय हस्बैंड इवन सेड कि ये तुम डिसकंटिन्यू करोगी, इतना एक्सपीरियंस तुम्हारा वेस्ट जाएगा। सो आई थॉट दैट कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, मुझे वो बिजनेस एक्चुअली कंटिन्यू फिर नहीं करना था, पता नहीं माइंड में क्या आ रहा था कि मुझे बस वो अब नहीं करना है कंटिन्यू, बट वो एक्सपीरियंस वेस्ट भी नहीं जाने देना था मुझे। सो हम्म। आई आस्क्ड माय हस्बैंड भरत, इफ ही इज गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट बिजनेस, तो मैं मतलब 6 मंथ में उसे सेटअप कर सकती हूँ विद द न्यू ब्रांड, न्यू हम्म। ब्रांड नेम जो हमने वेडिट से स्टार्ट किया, वेडिंग वीडियो एडिटिंग। तो विद दिस माय लर्निंग्स, आपका मैं लर्निंग भी कर रही थी सिल्वर मेंबरशिप में, लास्ट ईयर तक मेरा सिल्वर मेंबरशिप ही था। तो मैं जस्ट लर्निंग स्टार्ट करके फिर ये बेसिक मैंने आपको जो बोला कि ज्वेलरी लेके आ गई, इंस्टाग्राम, वो सब के साथ मैं मेरा वीडियो वेडिट का काम भी मैं स्टार्ट कर दिया था, वाओ। एम्प्लॉइज हायरिंग एंड दूसरा जो भी कुछ था, तो टिल दिवाली वो मैंने सेटअप कर दिया। हम्म। देन हम्म। आफ्टर भरत लेफ्ट हिज जॉब एंड आफ्टर दिवाली मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया। Wow. So now he is तो taking care of that business you are यस, supporting, and यस, you are doing your jewelry brand as well in हाँ, parallel. अब मतलब ये Amazing. दिवाली तक मैं जस्ट पार्ट टाइम उनके साथ हूँ, बट Hmm. आफ्टर दिवाली बस मैं फुल टाइम मेरे बिजनेस में हूँ एंड वो अपना बिजनेस मतलब कर लेंगे। सुपर अमेजिंग। तो आपको कहीं पे ये दिखा दिव्या, जस्ट क्यूरियस टू नो, कि जो भी आपने सीखा था सिल्वर मेंबरशिप में, वो चीज़ें वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे काम आई, द कॉन्सेप्ट्स? डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, क्योंकि बिजनेस का फंडामेंटल है कि मतलब वो ईच एंड एवरी जगह पे हम अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम्म। कहीं का भी लर्निंग वैसा नहीं है कि वेस्ट जाता है, बिजनेस का लर्निंग ही वैसा है
कि आप अगर एम्प्लॉइज के लिए मुझे वहां पे एम्प्लॉइज का भी आपने मतलब डिस्क्रिप्शन दिया था कि कैसे आप हायर कर सकते हो, कैसे उसको पैम्पर करना है, तो डेफिनेटली वो ईच बिजनेस के लिए वो काम आएगा। हम्म एम्प्लॉइज जो पर्सन्स है दे ऑल आर मतलब इक्वल। हर जगह पे उनके इमोशंस रहते हैं, हर जगह पे उनके प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो हमें हैंडल करने ही होते हैं। हम्म एंड यू नो वन बेस्ट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम योर वीडियो कि हमें मतलब बहुत हार्ड मैनेजर नहीं बनना है। यू नो ऑलवेज वी कांट बी लाइक वो बहुत हार्ड टफ वाला, वी कैन बी अ सॉफ्ट समटाइम। हम्म मतलब उनके इमोशंस को समझे, उनको पैम्पर भी कर सकते एज एन फैमिली, हम्म तो वो डेफिनेटली वहां पे भी वर्क करता ही है। सुपर मुझे अमेजिंग। काफी काफी काम आया। वाओ। सो मतलब uh, एक जगह पे सीख के यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर बोथ द बिजनेसेस which is great. I want to know now, how is your like you and your husband, both of you are in businesses. How has your relationship changed because of you both doing work for each other and with each other? you know ma'am, I have cleared from London, मतलब there one professor said me that कि don't work like a husband and wife, मतलब Hmm. कभी भी साथ में काम मत करना, अदरवाइज तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एंड मेरा नेचर है थोड़ा एक्शन टेकिंग, आपने जो बोला मुझे तुरंत चाहिए। Hmm. मैंने सोचा मैं नेक्स्ट स्टेप मतलब मेरा तुरंत लेती हूँ। मैं फिर वो डाउट नहीं करती मेरे डिसीजंस पे कि ये क्या होगा, खराब होगा, अच्छा होगा। वो मेरा नेचर है कि Hmm. मुझे तुरंत चाहिए। मैं वो नेगेटिव थॉट में जाती ही नहीं, मैं पॉजिटिव साइड लेके चली जाती हूँ। मैं पहले मतलब 5 मिनट का जस्ट माइंड में सोच लेती हूँ कि हाँ ये ज्यादा से ज्यादा आप जो बोलते हो वो मैं ऑलवेज मेरा थिंकिंग रहा है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। Hmm. तो उसी वे में मैं चाहती हूँ। बट भरत थोड़े डिफरेंट है, वो सोचते हैं फिर स्टेप्स लेते हैं। तो Hmm. हम दोनों साथ में तो काम कर सकते ही नहीं है। सो आई सेड दैट कि अगर आप ये हैंडल करने वाले हो तो मैं जस्ट सेटअप करके दे सकती हूँ, Hmm. बट वी कांट वर्क टुगेदर। Hmm. मैं मेरा बिजनेस अलग ही कुछ करूंगी। मतलब हमने ईच एंड एवरी साइड कि आप दोनों साथ में ही बिजनेस करो, क्यों अलग अलग कर रहे हो, आपको मतलब टीम की तो वैसे भी जरूरत रहेगी। बट आई Hmm. सेड नो, मुझे मेरा कुछ अलग ही करना है, वो अपने हिसाब से कर सकते। तो अभी भी वैसा ही है कि मैं जस्ट पार्ट टाइम जाती हूँ। Hmm. मेरा जितना अभी चेक करना है कस्टमर्स का या फोरकास्टिंग वो सब का, देन आई उसके लिए जस्ट आप गिव इट टू हेल्प माय करते हैं। या। Super amazing. When did you become a diamond member, Divya, and what made you decide कि मुझे diamond membership join करनी है फैशनप्रेन्योर क्लब में? एज आई सेड कि मैं मेरे नीज पे अटकी हुई थी। दूसरा मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है। मतलब आई हम्म डोंट नो, अभी 1 ईयर से तो बहुत खराब है, घर पे से काम करना होता है तो, क्योंकि आई यूज टू वर्क एट ऑफिस। हम्म तो ऑफिस में मतलब वो 9 to 8 या 9 to 10 या 9 to 7 जो भी टाइम होता है हमें हम यूटिलाइज कर लेते हैं कि मॉर्निंग हमारा ये स्केड्यूल है, आफ्टरनून कैन बी दिस, इवनिंग कैन बी दिस, वो सब सेटल रहता है। हम्म बट फ्रॉम हाउस ये बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाता है कि मैं घर के काम क्या करूँ। इन बिटवीन हमने एक मतलब हमने नया घर लिया था तो वहां पे शिफ्टिंग का भी था, तो बीच में मेरा टाइम का बहुत गैप आ रहा था। हम्म मैं कहीं पे क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा था। आई स्टिल नोट दैट कि मैंने आपको आपके नंबर पे नंबर ढूंढा था कि अच्छा ये हार्वी मैम का मैसेज मतलब कॉल हो सकता है। मैंने आई थिंक बहुत बड़ा सा मैसेज मैंने टाइप किया था आपको, मैंने क्लिक नहीं किया आपको भेजने के लिए, बट मैंने बहुत बड़ा लिखा हुआ था। मैं कहीं पे फंस गई थी हम्म मेंटली, और कहीं पे मतलब कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग विद द ज्वेलरी, बट देन व्हाट, हाउ टू एक्सपांड, हाउ टू मैनेज माय होम, हाउ टू मेक हैप्पी एवरी पर्सन। हम्म क्योंकि अभी घर में रह रही हूँ तो सबके अलग अलग डिमांड्स रहते हैं। कहीं पे बहू हो गई हूँ अब मैं, कहीं पे हम्म मम्मा हो गई हूँ, तो वो सब अभी मुझे फील हुआ। हम्म वो लास्ट 5 ईयर में डिफरेंट सिचुएशन था मेरा कि मैं निकल जाती थी 9 o'clock एंड आती थी, तब तक का कुछ शेड्यूल डिफरेंट था मेरा। राइट अब मैं फुल डे रह रही हूँ तो कुछ डिफरेंट है, वहां हम्म पे मैं स्टक हो गई। सो आई आई थॉट कि अब मुझे एडवांस लर्निंग चाहिए होगा।
अदरवाइज तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। दूसरा, मुझे प्रोडक्ट पे भी अटक गई थी कि मेरा नीज क्या हो सकता है। मैं कुछ अलग अलग कर रही थी और हर वेंडर से मुझे बात करना पड़ रहा है, हर वेंडर ढूंढना पड़ रहा है। वो हम्म डिफरेंट चीज हो गया था। मुझे ईच एंड एवरी चीज का मतलब सब कुछ रखना पड़ता है। आई कांट बी जस्ट आई कांट गो विद ओनली नेकलेस। इफ आई हम्म एम बाइंग एनी कुंदन नेकलेस, सो आई हैव टू बाय एनी रिंग ऑल्सो, ओनली इयरिंग ऑल्सो। सो इन दैट केस, अगर मैं जर्मन सिल्वर भी कर रही हूँ, मैं कुछ दूसरा भी कर रही हूँ, हर एक चीज पे मुझे सब कुछ लेना पड़ रहा है। तो राइट, तो यूएस बहुत ज्यादा ज्वेलरी खिचड़ी हो गई थी। हाँ हाँ, बस हम्म वो बहुत ज्यादा मैं स्ट्रक हो गई थी। सो वन डे आई डिसाइडेड, आपका वही वेबिनार चल रहा था कि डायमंड मेंबरशिप एंड मैं देखती हूँ, वो भी मैं देख रही थी कि कहीं पे मुझे कुछ लगे कि हाँ मैं अब ज्वाइन कर सकती हूँ, तो मुझे ज्वाइन तो वैसे करना ही था। हम्म मुझे एडवांस लेवल पे जाना था तब। जस्ट वन थिंग था वहां पे बेनिफिट। यू हैव सेड दैट वी हैव अ मीटिंग 1 hour विथ यू। हम्म तो आई वाज सो एक्साइटेड विद दैट कि मुझे ये चांस नहीं जाने देना है। आई डोंट नो नेक्स्ट टाइम यू विल गिव दिस अपॉर्चुनिटी। या वी स्टॉप्ड गिविंग दैट, हाँ सो व्हाट यू ग्रैब्ड? हाँ, सो मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई वही चीज से। आई आई हैव टू डू दिस टाइम। आई कॉल टू भरत। भरत से दिव्या, अभी लाइक हमने दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट वहां पे भी काफी कुछ जा रहा है। मैं खुद भी मतलब ज्वेलरी न्यू न्यू मंगवा रही थी, तो मुझे भी इन्वेस्टमेंट चाहिए था। बट आई सेड आई ऑलवेज आपको मतलब मैंने सुना है कि हाँ, घर के पास एक पावर रहता है ज्वेलरी का, जो हमारी खुद की रहती है ना। तो आई सेड दैट भरत। भरत थोड़े इमोशनल में आ गए, क्योंकि वो बॉयज एंड ऑलवेज पहले से हमारा जो मतलब रहा ही है, गुजराती हो या कहीं पे भी इंडिया में, कि ज्वेलरी अच्छा सेल कर रहे हैं, वो इतना क्या प्रॉब्लम हो गया। अगर हम मंडी भी हम्म पढ़े ना, तो किसी को सेल नहीं करना होता मतलब ज्वेलरी। रोड पे आ गए तो ही सेल हाँ, करना चाहिए। तो सेल करते हैं। और पता नहीं वो ज्वेलरी से क्या लगाव है हर एक को, कि उसको सेल नहीं कर सकते खुद के लिए भी। अगर नहीं हम्म कहनो, वो लॉकर वाले को पैसा हम दे रहे, दे ईच रहे वन को हैं। 5 के हम दे रहे उसको, कि आप संभालो ज्वेलरी हमारा। बट हम्म हम बेच नहीं सकते। बट आई हम्म कन्विंस हिम कि मुझे देखो आगे जाना ही है। आप मुझे मुझे आपके पास पैसा सब नहीं चाहिए। ऐसा हो तो थोड़ा रख दो, थोड़ा आप मुझे कर दो, तो आपको भी वो अंदर से फील ना हो, गिल्टी फील ना हो कि हाँ मतलब दिव्या का ज्वेलरी हो गया। आई सेड कि जो जो मैं नहीं पहन रही हूँ वो मैं बताती हूँ, हम्म एटलीस्ट वो कुछ करते हैं। तब भी तो प्रॉब्लम होगा, तो वो मैंने कुछ सॉल्यूशन निकाला। एंड देन आई जस्ट ज्वाइन योर डायमंड मेंबरशिप। Wow, wow, Divya. Thank you for being so open and sharing, and thank you for trusting me yourself. Because a lot of us we wait के खराब दिन आएंगे तब देखेंगे। आई एम अ फर्म बिलीवर कि खराब दिन देखने ही क्यों है, यस। उससे पहले ही हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकते। लोग बोलते हैं कि खराब दिन आए तब बेचो ज्वेलरी, अरे पहले बेच के। आई मीन आई एम नॉट टेलिंग टू एनी व्यूअर कि ज्वेलरी बेच के पढ़ाई करो, बट द पॉइंट इज इफ यू कैन व्हाई नॉट, राइट? सो ग्रेट, थैंक यू। एंड आज कैसा लगता है कि वो बेच के सही किया गलत किया? लाइक व्हाट आर योर थॉट्स टुडे? डेफिनेटली बेइज्जती किया है। आई वांट टू से टू ऑल पर्सन, मतलब वो सिल्वर मेंबर में है, गोल्ड में है या डायमंड में है, आई डेफिनेटली के से ये जो डायमंड मेंबरशिप है ना, वो एक भगवत गीता जैसा है। मैं भगवत गीता भी काफी रीड करती हूँ, तो वो मुझे उसी के जैसा लगता है। कभी भी कहीं पे अगर हम अटक गए हैं ना, तो जस्ट आप वहां पे टीचेबल में चले जाओ, आपको उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, ये मतलब आपका जो फैशन प्रोन्योर का जो बिजनेस है, मतलब आपने जो टीचेबल में जो भी बनाया हुआ है ना, वो सारा एक बिजनेस का भगवत गीता है मैम। और हमें ईच एंड एवरी चीज का सॉल्यूशन तभी मिल जाता है। अगर हम मेंटली कहीं पे अटके हैं, तो डेफिनेटली आपने काफी सारी ऑडिट से काफी सारा चीज माइंड सेट पे बनाया हुआ है, तो वहां पे क्लियर हो जाता है। अगर कुछ भी मुझे अगर फुल डे एनर्जी लो लग रहा है, तो मैं वहां पे चली जाती हूँ, कुछ भी थोड़ा भी वीडियो देख ले, एनर्जी आ जाता है कि हाँ नहीं मैं अटक नहीं सकती, यहाँ पे स्टॉप नहीं हो सकती, आई हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप। एनर्जी, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो हमें ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब मिल जाता है। आप
ऑलवेज वो एनर्जी से ही बात करते हैं, तो इट वर्क्स फॉर अस। Hmm. तो डायमंड मेंबरशिप तो मेरे लिए काफी काफी मतलब हेल्पफुल है। उसके बाद तो मैं कितने कितने मेरे एरिया में मैं मतलब सोच लेती हूँ कि हाँ मैं आगे मुझे ये करना है। जैसे कि बूट कैंप भी हुआ था एंड डायमंड मेंबरशिप बोथ। मैं मतलब दोनों के साथ में लर्निंग से मुझे एटलीस्ट मुझे नेस पता चला कि हाँ मैं फ्यूजन ज्वेलरी एंड कुंदन ज्वेलरी Hmm. मैं कुछ 10 चीज लेके बैठी थी, इससे अच्छा मुझे कुछ दो एटलीस्ट समझ अभी आया है। Super. I can go with the both fusion and kundan. I will check out in a further like next year कि कौन Hmm. सा ज्यादा वर्क कर रहा है। In a next year like in 2024 I can have a better idea. बट Super. मैं सोच सोच के नहीं बैठ सकती ना क्या होगा क्या होगा, तो मैंने बस ये Hmm. डिसीजन ले लिया। एंड Hmm. देन अभी मैं वेबसाइट पे भी काम कर रही हूँ मैं खुद मतलब होपफुली till Diwali I will finish out my Finish website that work as and well. I will just launch my ad website. Amazing, amazing, Divya. I want to know, you spoke a lot about you being very positive या फिर mindset पे आप काम करते हो. Tell me your top three mindset mantras कि without any fear आप actions कैसे लेते हो? Like what would you like to share with others? Top three mindset mantras that you follow. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम बीइंग अ वुमन, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, वो मैं पहले गिल्टी फील वाला जोन में थी। Hmm. जब मैं मतलब एज अ मदर बनी 1 ईयर का कोर्स था, बट फ्रॉम दैट टाइम वो गिल्टी गिल्टी 1 ईयर तक रहा। इन दैट 1 ईयर यू नो आई सेड कि फैमिली ने सपोर्ट किया पूंछ को हैंडल करने में, बट वो हैंडलिंग मुझे अहमदाबाद से आ रहा था, मुझे पूंछ को अहमदाबाद रखना पड़ा था। अच्छा. मैं ईच मंथ में मतलब जैसे सैटरडे संडे आता, मैं भरत को बोलती मुझे कुछ को मिलना ही है, तो मैं ईच सैटरडे संडे वहां पे अहमदाबाद चली जाती थी। सैटरडे गई, Wow. संडे मिलके कुंज को आ जाती थी। मुझे मैंने 1.5 ईयर कुंज को वहां पे रखा है। अच्छा तो अलग था बेटा अहमदाबाद में था आप सूरत में थे मेरे वहां इन से आके अहमदाबाद से, हम अहमदाबाद से, मैं सूरत हम्म मतलब यहाँ पे बिजनेस के लिए सेटल हम हुए थे। राइट ओके तो वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, बट डेफिनेटली वो वहां से सपोर्ट कर सकते थे। तो हम्म मुझे सूरत से मतलब वहां पे ही उनको कुंज को रखना पड़ा हम्म बिकॉज ऑफ हिम। तो माइंडसेट का मुझे मतलब काम वहीं से चालू हो गया था, तो मुझे जरूरत पड़ रहा था कि मैं हम्म मेंटली कैसे स्ट्रांग रहूं। कि बीइंग अ मदर, मुझे कितने लोग बोल रहे थे कि कैसी मदर है, मतलब तू हम्म 1 ईयर को कैसे रख सकती है। फर्स्ट मैंने 1 ईयर को रखा, बट डॉक्टर ने ही बोला कि आप मतलब अभी से फीडिंग नहीं छोड़वा सकते हो, आपका बेबी है लाइक दैट। तो हम्म मुझे इतना गिल्टी हुआ, मैं उसको लेके आ गई। आफ्टर हम्म 2-3 मंथ वहां तक मैंने मैनेज किया। मेरी मदर को बोला कि प्लीज आप थोड़ा टेक केयर कर लो इसको, मैं जॉब पे जाके आती हूँ। जॉब पे भी बात किया कि मुझे थोड़ा अभी टाइमिंग का इश्यूज रहेगा, आप जस्ट चेक कर लीजिए। वर्क ऑलवेज डन रहेगा, मैं नाइट को भी वर्क कर लूंगी, कैसे भी डन कर लूंगी। हम्म तो वो सब कैसे भी कैसे एडजस्ट किया मैंने, फिर कुछ तो मुझे वहां पे रखना ही पड़ा था। तो बट एज आई सेड कि बीइंग अ मदर मुझे मुझे भी ओके नहीं लग रहा था उससे दूर रहना, तो सैटरडे संडे तो हम वहीं पे चले जाते। हम्म वैसे 1.5 ईयर तक हमने मैनेज तो वो किया किया कैसे तो भी मतलब करके। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्रिंसिपल्स अगर तीन आपको लिस्ट डाउन करने हैं तो वो क्या है कि लाइक व्हाट मैसेज वुड यू वांट टू गिव टू अदर वुमेन who are also in a job and doing business or they have small baby and they are setting up their business, what are the three mindset lessons you want to give them? फर्स्ट मेरा लर्निंग तो ये है कि हम हर पर्सन को हैप्पी नहीं रख सकते, और वो हम्म हमें ट्राई करना भी नहीं चाहिए। हमें हम्म जस्ट हैप्पी रखना है खुद को, कि अगर हम हैप्पी रहे तो हम दूसरे लोग को भी हैप्पी रखने के लिए मतलब कैपेबल है। सुपर बट इफ अमेजिंग वी आर ट्राइंग कि ईच एंड एवरी पर्सन मेरे से खुश ही रहना चाहिए, और अगर हम वही ट्राई कर रहे, थोड़ा भी किसी को बुरा लगे तो हम माइंड पे अगर ले रहे, तो फिर हम फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकते, ना आज में कुछ कर सकते, हम वहाँ पे स्टक हो जाते। हम्म इफ वी आर स्टक विद एनी पर्सन, तो हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, ले सकते हैं राइट यू नो, दैट्स तब हम वन कुछ व्हाट अलग वुड चुमन बी में चले जाते। right amazing so one you're saying is don't try and make everybody happy मतलब नहीं कर पाओगे वो what's the second one that you want to share सेकंड
सेकंड लर्निंग मेरा ये है बिजनेस के रिलेटेड कि हम्म हमें ऑलवेज प्लानिंग से चलना चाहिए. I always believe to do like forecasting for at least 6 months. हम्म मतलब मोटा मोटा हम 6 मंथ के लिए कर सकते हैं बट डीप फोरकास्टिंग 1 मंथ का. एंड हम्म देन आफ्टर वी कैन गो विद लाइक डेली चेकिंग कि हमने जो फोरकास्टिंग किया हुआ है 1 मंथ का जो फिगर हमने डाला हुआ है जैसे कि ये मंथ का मैंने 3 लाख का रेवेन्यू का मैंने फोरकास्ट डाला हुआ है बट हाउ वी कैन अचीव दैट. हम हम्म 1 मंथ तक उसको वेट नहीं कर सकते ना कि चलो लास्ट में 5 डेज में हम देख लेंगे 3 लाख तो हो ही जाएगा कुछ एक्सिबिशन कर लेंगे ये कर लेंगे बट वी कांट अचीव दैट वन. वी हैव टू प्लान प्लान इन ईच डे. एडवांस हाँ, ईच डे वी हैव टू प्लान लाइक अ मॉर्निंग हाउ वी विल पास अवर फुल डे, how our utilize if we are working for from home. I हम्म think mostly women are working from home. They हम्म have so many to do. So in that case we can pass it like morning में हमारा एक rituals मतलब जो भी routine है 10 o'clock या 11 o'clock तक we can done that. And then after we can go to एक place बना सकते हैं कि वहीं से हमें लैपटॉप लेके बैठ जाना है. वही At आपका least one to होम two hours. ऑफिस हो गया. Yes, yes. For हम्म at least 1 to 2 hours. और राइट. हमारा सन या कुछ भी मतलब स्कूल से आ रहे तब तक एटलीस्ट हम हमारा टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर बिजनेस. हम्म एंड डेली ग्रेट. का हम रेवेन्यू चेक कर सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो तो मोस्टली हमें समझ आ ही जाएगा आ अगर ही इतना जाता है. टाइम हम देंगे तो. सो ओवरऑल आप बोल रहे हो प्लानिंग के साथ डू योर बिजनेस. दैट्स योर यस, सेकंड. एनीथिंग एल्स यस, दैट यस, यू वांट टू यस. ऐड? एनी थर्ड वन in terms of mindset? Don't make everybody happy. Do your business with planning. What else? One more thing that you would want to share? सॉरी. What is that one more thing that you will want to share? कि third mindset या business related big learning that you have got. थर्ड माइंडसेट आई बिलीव वी कैन से इजीली टू नो मतलब नो टू एनीवन. Hmm. जो मेरे लिए पहले बहुत मुश्किल था. मैं एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ तो मुझे अंदर से कुछ फील आता है कि मैं नो बोलूंगी तो इनको क्या फील होगा, क्या लगेगा? उनको कैसा लगेगा वो सब में थी. बट देन आफ्टर आई हैव लर्न दैट कि उनको क्या फील होगा वो उन्हीं पे छोड़ देते हैं. उनका Hmm. फीलिंग कि उनको क्या फील होने वाला है. अभी जो मुझे फील हो रहा है वो मुझे उनको एक्सप्रेस करना है. If Hmm. I'm feeling I have to say yes, I will say yes. If I will feel I have to say no, I will feel मतलब I will say no. मैं Hmm. कुछ वहां पे डबल माइंड से नहीं रह सकती. Hmm. Super, amazing. Amazing, Divya. This is such a great journey from I think I really understand and feel you when you say 1.5 साल के लिए your son was away. I used to put Ayansh in a daycare. सुबह छोड़ा, शाम को लिया, और वो एक पूरा दिन जब मैं ऑफिस में जाती थी इतना ज़्यादा गिल्टी फील होता था बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज डूइंग ऑफिस, रेगुलर ऑफिस, in the evening and on weekends only do bling bag and then be that feeding mom. और वो पूरा सिनेरियो याद आ गया एकदम से, और मुझे लगता था कि एक दिन सुबह से शाम भी बहुत बड़ी बड़ी बात है कि मैंने बेटे को दूर रखा एंड आई एम परस्यूइंग माई करियर. एंड here I see a warrior for your dreams, for your family's better life. You were ready to take those actions, and nothing stopped you. I think that's the beauty of you being a part of the fashionpreneur warrior community, that we are warriors and you're proving one by living that particular life. So very very inspiring. I wished we could go on and know more about your brand, but before I let you go, what is that one message that you want to give to everybody who is thinking to start their own business? क्या बोलना चाहोगे आप उनको? आई ऑलवेज बिलीव कि आप मतलब आई ऑलवेज बिलीव इन एक्शन. हम्म आप ऑलवेज मतलब अगर कुछ उसमें रहोगे कि क्या होगा, खराब हो जाएगा, कुछ मतलब कुछ भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही आपको लग रहा है, अगर आपका माइंड प्रॉब्लम पे ही चल रहा है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम ही आपको दिखेगी. हम्म अगर आप मतलब आपकी लाइफ में सॉल्यूशन ढूंढने चाहोगे ना तो डेफिनेटली यहाँ पे इतना मतलब भगवान पे बिलीव कर दिया, किसी पे भी आप बिलीव कर दे वो आपको सॉल्यूशन ही देते जाएंगे. तो हम्म ऑलवेज आप कुछ भी समझ में आ रहा है एक्शन करो, मतलब वो करो.
उसी में से लर्निंग मिलेगा और नेक्स्ट स्टेप भी उसी में से मिल जाएगा आपको। सुपर, आप वेरी मतलब वेल सोच सेड। के नहीं बैठ सकते कि नहीं, पूरा मतलब माइंड में नहीं वो सोच सकते बिजनेस के 1 ईयर के बाद ये होगा, 5 ईयर के बाद होगा, 10 ईयर। एटलीस्ट यू कैन प्लान फॉर 1 मंथ। वो हम्म। 1 मंथ मिलके पूरा 1 ईयर बन जाएगा। बट आप सुपर। पूरा 1 ईयर के बाद क्या होगा, मैंने ये किया तो फिर ये क्या होगा, मतलब वो सब हम नहीं सोच सकते इतना ज्यादा। और ये माइंडसेट मुझे मेरे मम्मा से मिला है। हम्म। मेरे फादर को मतलब आई हैव लॉस्ट माय फादर, 22 ईयर हो गए। हम बहुत छोटे थे तब से नहीं है, तो मम्मा ही मतलब यू ऑलवेज से वॉरियर, सो आई हैव सीन वन वॉरियर, माय मम्मा। सो हम्म। उन्होंने तो काफी स्ट्रगल किया अकेले, हम भी छोटे थे तो हम दोनों, मुझे मेरे ब्रदर को भी उन्होंने आगे बढ़ाया काफी मेहनत करके। एंड उन्होंने तो जस्ट 10th पास किया था, हम्म। हमें तो उतना कैपेबल बनाया है, एमबीए करवाया है, सारा कुछ। तो डेफिनेटली हमारे पास लर्निंग भी एक्स्ट्रा है, तो हम कहाँ पे मतलब इतना वो माइंड चलाने की जरूरत ही नहीं है ना। राइट। आई एक्शन थिंक मतलब वेरी लेने की वेरी वेल जरूरत सेड कि हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी कम रिसोर्सेज में हमें संभाला, है। राइट, यस, लाइक, एंड नाउ वी आर मच मोर केपेबल देन देम बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन और द अपॉर्चुनिटीज़ आज। और उसमें मतलब उन्होंने इतना अच्छे से निकाली ज़िंदगी या हमें संभाला, और हम क्यों क्रिब करें या हम क्यों ये सोचे कि नहीं होगा या ये नहीं। डेफिनेटली वेरी मैम। वेल सेड, वेरी वेल सेड। हम्म। उन्होंने, आई नो दैट, उन्होंने मतलब घर, हमारा जो घर था उन्होंने मॉर्गेज करके मुझे एमबीए के लिए लंदन भेजा था। हम्म। बिकॉज ऑफ आई वॉज जस्ट कंप्लेनिंग टू हर कि आपने मुझे गुजराती मीडियम में क्यों डाला। अब मुझे मतलब मुझे पहले से कुछ करना था, बिजनेस बिजनेस बस माइंड में तो था मुझे कि कुछ बिजनेस करना है। तो दैट टाइम हम्म। आई हैव लाइक बिग पॉइंट दैट मुझे इंग्लिश नहीं आता है, ये नहीं होता है, आपने मुझे क्यों डाला। बट मॉम सेड मैं तुम्हें इतना तो कर दूंगी कि तुम एटलीस्ट दुनिया देख लो, तुम्हें समझ में आ जाए, हम्म। तुम्हें आइडिया आ जाए कि तुम्हें अब क्या करना है। और दैट टाइम आई वाज साइड, रो, रोती हुई गर्ल कुछ थी मैं। हम्म। हम्म। बट उन्होंने मुझे अकेले छोड़ा 5 ईयर के लिए, एक ऐसी कंट्री में कि जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता है, खुद कुछ हम्म। सब कुछ मैनेज करना था। तो डेफिनेटली उनका वो डिसीजन, मैं अब उनको थैंक यू ही बोलती। तो तब तो मैं गुस्सा हो रही थी कि आपने मुझे क्यों वहां पे अकेले एब्सोल्युटली। भेज दिया था। बट डेफिनेटली मैं अब बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे वहां पे भेजा, तो मैं इतनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अब बनी हूँ। हम्म। Super great, Divya. You are such an inspiration, and I'm so proud of you for the little journey that I could know from you. But I'm sure, with more focus and more actions that you're going to take, and the website that you will build by Diwali for your brand, and the next level actions, it's just going to go to the another level. So, all the very best for Diya Jewels. All the very best for you, and keep taking actions, keep inspiring, and I will see you very, very soon. थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Divya.